हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7, द गुप्ता इरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। सो जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। टायरलेस मीन्स बिना थके लोग करते ही रहते थे अपना काम जो भी है उनका वो सब, तो क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ऊपर जा चुकी थी। अब गुप्ता हमने मौर्य के बारे में पढ़ा, मौर्य के बाद में बहुत सारी जो हैं अलग अलग डायनेस्टीज़ आई, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी। सो उसके बाद में कौन सा आया, गुप्ता इरा आया, गुप्त वंश या गुप्त डायनेस्टी आप इसे बोल सकते हैं। नाउ नाइदर फोर्स नोर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट evil, nor is righteousness upheld by flattery alone. It is wisdom and knowledge that luxury strengthen a kingdom. Truly strengthen a kingdom, not in इंडुलेंस इन लग्जरी। सो कालिदास जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि सिर्फ फोर्स से आप या डिप्लोमेसी से आप इविल को, यानी कि जो गलत चीज़ें उन्हें नहीं रोक सकते, उसके लिए नॉलेज और विजडम होना भी एक बहुत ज़रूरी है आपके किंगडम को अच्छे से चलाने के लिए और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अब ये अजंता केव बताई गई हैं जो कि 2nd सेंचुरी BCE में और 480 CE के टाइम पे बनी थी। अजंता केव से क्या है, पूरा पहाड़ है, पहाड़ को कट करके वो पूरा बनाया गया है। अब कुछ क्वेश्चन है जो इससे चैप्टर से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द गुप्तास? गुप्तास कौन थे एंड व्हाई डिड द गुप्ता पीरियड कॉल्ड समटाइम कॉल्ड द क्लासिकल एज इन इंडियन हिस्ट्री? So the Guptas were the powerful dynasty that emerged in northern India around the 3rd century CE. They initially ruled as religion king in area near present डे उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर उनका जो है मेन था इनिशियली जहाँ पर उन्होंने रूल किया था, लेकिन ग्रेजुअली एक्सपेंड देयर कंट्रोल, धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपेंस किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया और पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। क्लासिकल एज क्यों बोला जाता है? सो कल्चरल फ्लरिशिंग हुई थी। द पीरियड शो ग्रेट अचीवमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर जो है फ्लोरिश हुआ था। फेमस पोएट कालिदास रोट सेलिब्रेटेड वर्क्स लाइक मेघदूतम एंड रघुवंशम। Scientific progress, Aryabhatta makes significant advances in mathematics and astronomy. Vahar Mira contributed to astrology, weather forecasting and town planning. Art and architectures, executive temples, sculptures and rock-cut caves like Ajanta and Udayagiri were created. Peace and prosperity, a long period of stability and good governance led to economic growth and public welfare. Lasting legacy, the advancement made during this time had a long-lasting impact on Indian culture and history. So this is why the Gupta period is often referred as the classical age of ancient India. What was happening in the rest of the subcontinent at this time? तो साथ जो subcontinent है बाकी उसमें क्या हो रहा था? So while the Guptas ruled northern India, several other kings flourished in the other part of subcontinent. Vakata's kingdom in central India, which had close ties with the Guptas through matrimonial alliances. Pallava dynasty in the south, ruling over part of present-day Tamil Nadu, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. They were patrons of temple architectures and learning. Kamarupa kingdoms in the northeast, present-day Assam and Bengal, known for being a cultural and religious hub. These kingdoms continued to the rich diversity of Indian society and culture during this time, making the period vibrant and dynamic across the subcontinent. Now, who were some great figures of this period? कौन थे जो important figure थे इस period के? Or why do their stories matters most? So some of the great figures of Gupta periods include Samudragupta, known for his military conquest and patronage of his art. His court poet Harisena wrote the Prayag Prasasti praising his achievement. Chandragupta II Vikramaditya, a powerful ruler who promoted science, literature and art, and the Iron Pillar of Delhi is associated with him. Prabhavati Gupta, daughter of Chandragupta Dvitiya, who ruled as a regent and helped strengthen ties with the Vakatakas. Aryabhatta, a brilliant mathematician and astronomer who proposed that Earth rotates and calculate an almost accurate length of the year. Varamira, a scholar known for his work in astronomy, astrology and town planning. Kalidasa, one of the greatest Sanskrit poets and playwrights, famous for work like Meghadutam and Raghuvansham.
Now these individuals matter today because their contribution led to the foundation of Indian science, literature and culture. Their work continue to inspire learning, creativity and national pride even in the modern era. Now Dhruv and Bhavisha has just returned from their journey to the Pandya's kingdom. So Pandya's kingdom से ये वापस आई, पहले मौर्य में गए, देन वो पांड्या वाले में गए थे, अब वहाँ से वापस आ गए. They had seen the splendid markets, taken a short trip on a ship and made some Roman traders buying pearls. तो उन्होंने वहाँ पे मार्केट्स देखी, छोटी मोटी ट्रिप्स भी की शिप पे, और रोमन ट्रेडर्स को भी वहाँ पर देखा पल्स खरीदते हुए. नाउ दे वर इचिंग टू यूज़ इतिहासा अगेन एंड जंप अ फ्यू सेंचुरीज. तो अब वो फिर से जो उसमें इतिहास जो उनका गैजेट है जिससे वो पास्ट में जा सकते हैं, तो उसमें जाना चाहते हैं और कुछ सेंचुरीज़ के बाद वो देखना चाहते हैं. वट वुड डेट बी लाइक. अब वो कैसा हो गया, वो वंडर. विल द सिटीज़ भी सेम, क्या अब सिटीज़ फिर से सेम है. वट अबाउट द पीपल एंड सोसाइटी, लोगों की और सोसाइटी के बारे में अब क्या हो गया, कैसे हैं वहाँ पर. वुड दे हैव चेंज, क्या वो चेंज हो गए हैं. वट काइंड ऑफ गवर्नेंस वुड दे हैव, अब उनकी गवर्नेंस कैसी है. वुड देयर बी न्यू लिटरेचर न्यू आर्ट, क्या अब जो है न्यू लिटरेचर और आर्ट आया है. दे कुड नॉट वेट टू फाइंड आउट एंड वर सून विक्स्ड अवे टू, और वो जो है वेट नहीं कर पाए थे, जल्दी से उन्होंने अपना इतिहास घुमाया और पहुँच गए. Now the Gupta Empire. The Gupta Empire was the most powerful and flourished from the 3rd to 6th century CE with its capital of पाटलिपुत्र, जो कि आजकल पटना है, बिहार में जो पटना है वो उसे पहले पाटलिपुत्र बोलते थे. तो गुप्ता एम्पायर बहुत जो है पावरफुल था, और उस टाइम पे वो क्या था वहाँ का सबसे पावरफुल. एंड ब्रह्मपुत्र को अपनी क्या बना, सॉरी पाटलिपुत्र को क्या बनाते थे, अपनी कैपिटल बनाई थी. द कर्मा रूपा kingdom was an important power that ruled in the parts of modern day असम. अब यहाँ पर ये वाला एरिया असम का था जो वहाँ पे जो है ये लोग रूल कर रहे थे. और उसके बाद वक्त कशा रूल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट विद देयर कैपिटल एज नंदीवर्धना, जो कि आजकल का नागपुर है. यहाँ पर ये लोग थे. तो अलग अलग जगह पे गुप्ता एम्पायर सबसे ज़्यादा जो है उस टाइम पे क्या था, पावरफुल था, लेकिन बाकी दूसरे किंगडम भी वहाँ पर थे. अब देखो गुप्ता के आगे एम्पायर लगा और बाकी सब पे किंगडम, यानी कि उसके पास ज़्यादा जगह थी, छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम उसके अंदर मर्ज थे. पल्लवा किंगडम विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम. द पल्लवा रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहनास डायनेस्टी एंड रूल टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th century. सो सातवाहना के बाद ये डायनेस्टी थी जिसने वहाँ पर रूल किया था. Now, Bhavisha, my head is spinning. There are so many kingdoms and empire. How am I ever going to remember all of this? तो भविष्य बोलते इतने सारे किंगडम्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरा तो सर ही घूमने लगा है, कैसे याद रखूंगी मैं ये सब. सो ध्रुव बोलता है डो नॉट वरी भविष्य, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड वी विल रिमेंबर इट. हम देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, तो हमें अपने आप याद रह जाएगा, हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं होगी. इज देयर एनीथिंग इन दिस पीरियड दैट वी कैन सी बैक होम, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें आज भी घर के टाइम पे दिखाई देती है या घर में दिखाई देती है. सो ध्रुव बोलता है लेट अस यूज़ अवर टाइम मशीन एंड फाइंड आउट. चलो अपनी टाइम मशीन यूज़ करते हो, देखते हैं. भविष्य एक्टिवेट्स इतिहास एंड दे जम्प टू मेहरौली, जो कि आज दिल्ली में है. वे द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड, जहाँ पर जो ये आयरन पिलर है दिल्ली का, जो आज भी स्टैंड है और जो उस टाइम पर भी था. दे ओवर हेयर अ टूर गाइड नियर बाय हु वॉज एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पिलर. और वहाँ पर एक जो है टूर गाइड होते हैं जो बताते हैं सारी चीज़ों के बारे में, वो एक्सप्लेन कर रहे थे इस पिलर के बारे में. सो टूर गाइड जो था वो बोल रहे थे दिस पिलर ऑफ दिल्ली इज़ ओवर 1600 ईयर्स ओल्ड. सो 1600 साल पहले का है. एंड स्टिल स्टैंड टोल विदाउट ट्रस्टिंग. अब आयरन का है तो उस पर जंग लग जाना चाहिए था, लेकिन उस पर आयरन पे जंग नहीं लगा है. इट इज़ अ टेस्टामेंट टू द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशियंट इंडिया. तो इससे पता चलता है कि पहले के जो लोग थे उनकी जो इन चीज़ों को लेकर जो टेक्नोलॉजी थी या स्किल थी वो कितनी अच्छी थी. भविष्य 1600 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ ट्रस्टिंग, और अभी तक इस पर कोई जंग नहीं लगा है. लेट अस गो एंड सी इट. लुक, इज दिस द फेमस आयरन पिलर. तो वहाँ पहुँचते कि यही तो वो आयरन पिलर है. ओह वाओ, दिस इज समथिंग रिटन आउट. इस पर तो कुछ लिखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा. तो भविष्य बोलती है आई वंडर हु मेड इट, कि किसने ये बनाया गया, वाई और क्यों. लेट हियर व्हाट द गाइड अंकल हैज़ टू से अबाउट इट. देखते कि गाइड अंकल क्या बोल रहे हैं. सो टूर गाइड बोलते हैं द 6 टन पिलर वॉज एरेक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू. तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्हीं में, सॉरी चंद्रगुप्ता जो है ये अब जो है गुप्ता डायनेस्टी में भी एक चंद्रगुप्त हुए हैं जिन्हें चंद्रगुप्ता द्वितीय बोला जाता था, या 2 आप बोल सकते हैं.
अ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, उन्होंने उसे बनाया था. इट वॉज प्रोबेबली एरेक्टेड फर्स्ट इन द फ्रंट ऑफ द उदयगिरी केव्स. तो मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी केव्स है वहाँ उसे बनाया गया. एंड बोर्ड टू दिल्ली इन अ फ्यू सेंचुरी लेटर, और कुछ सेंचुरीज के बाद उसे दिल्ली लेकर आए गए. इट वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेटेड द किंग्स अचीवमेंट. ये जो है भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था, उनको डेडिकेट किया गया था. और इसमें जो है जो किंग हैं उनके अचीवमेंट्स लिखे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं की थी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ पर अपने एम्पायर में की थी, या फिर कुछ अलग जो था वो सब. बोथ. That is so fascinating. We would love to learn more about this king and his empire. अब तो हमें इसके बारे में जानना है क्या है. So let us begin this exciting journey into the history of Gupta Empire. अब वो कहाँ जाएंगे? गुप्ता एम्पायर में. Now don't miss out. Picture living a bicycle out in the range for just 1 year. अब सोचो कि आपने जो है एक आपकी बाईसाइकिल या कोई भी चीज़ है उसमें 1 साल के लिए बाहर छोड़ दिया है, बारिश भी आ रही है, सब कुछ है. इट वुड सोन शो साइंस ऑफ डस्ट, तो उसमें जो रस्ट, उसमें जो जंग लग जाएगा. येट दिस एंशियंट पिलर, अब ये पिलर इतना साल पुराना है, स्टैंडिंग अंडर द ओपन स्काई फॉर सेंचुरीज, इतने सालों से, इतनी सेंचुरीज से वो ओपन स्काई में है, रिमेन अनअल्ट, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है. साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू अनकवर इट्स सीक्रेट, और साइंटिस्ट ने ट्राई भी किया कि पता चले क्यों इसमें रस नहीं लगता है. दे बिलीव इट इज़ बिकॉज अ यूनिक थिन लेयर, तो उन्हें पता चला कि एक पतली सी जो है थिन लेयर जो है वहाँ पर लगाई गई है, अलग सी यूनिक सी, क्रिएटेड बाय द स्पेशल आयरन यूज्ड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जिसमें जो है आयरन और ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है, और फिर वो लेयर वहाँ पे लगाई गई है. फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आयरन, ठीक है, फॉर्म ऑन द सरफेस, सरफेस पे लगाई गई आयरन की, जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है को इरेजन करने से, यानी कि रस से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है. सो अब देख लेते हैं क्या होता है आगे. अ न्यू पावर एमर्ज, तो अब एक नई पावर आती है. बाय द 3rd century CE द कुशानाज एम्पायर विच स्प्रेड ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में जो है सब जगह पे फैल गए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे. स्टार्टेड टू वीकन, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो कमज़ोर होना शुरू हो गए. न्यू किंगडम्स एमर्ज, अब नए नए किंगडम्स जो आने लगे. सेटिंग द स्टेज फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड द न्यू एक्टर ऑन दिस स्टेज वॉज द गुप्ता डायनेस्टी. सो बहुत सारे अलग अलग आने लगे, अपना जो है पीरियड स्टार्ट करने लगे, अपनी डायनेस्टी शुरू करना चाहते थे. इन सब में जो सबसे नया था वो क्या था? गुप्ता. गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्त वंश इसे बोला जाता है. देर आर वेरियस थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ द गुप्तास, अब बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं इनके बारे में. हाउएवर इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट दे एमर्ज्ड इन अ रीजन नियर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एज रीजनल रूलर्स. लेकिन सबसे ज़्यादा बिलीव ये किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है एज ए रीजनल रूलर्स ये जो है पहले आए, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना पूरा एम्पायर बनाया. ओवर टाइम दे रोज टू द प्रोमिनियंस एंड एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर, और धीरे धीरे जो है ये इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और अपना जो है प्रोमिनियंस, यानी कि मतलब आसपास के एरिया को अपना जो एक तरह से आप बोल सकते हैं अथॉरिटी शो की, और पावरफुल एम्पायर बन गए. द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड रिमार्केबल इन Indian history and is marked by significant development in many areas. So गुप्ता पीरियड जो है उसे इंडियन हिस्ट्री में बहुत रिमार्केबल, बहुत अच्छा माना जाता है, और बहुत सारे जो है इसने बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए थे, जो बाद में भी जाने लगे, जैसे ये पिलर की बात हो रही थी. द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस फ्लरिश्ड, हर एक तरह का फील्ड जगह जो है आगे जो है ग्रो कर रही थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता द्वितीय. तो चंद्रगुप्ता 2 थे उनके टाइम में. एंड दैट लेगेसी कंटिन्यूस इवन टुडे, और ये आज तक भी कंटिन्यू कर रही है. द इंस्क्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर इन दिल्ली स्पीक्स ऑफ अ किंग नेम चंद्रा. अब दिल्ली में जो आयरन पिलर है उस पर भी चंद्रा नाम के राजा के बारे में बताया गया है. हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे जो है चंद्रगुप्त 2 भी या द्वितीय भी बोला गया है. सो नाउ नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी whom वी मेट अर्लियर. अब ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो किस में है? गुप्ता डायनेस्टी में है. अब यहाँ पर जो गुप्ता है ना साथ में, तो ये इनकी गुप्त डायनेस्टी का. अगर चंद्रगुप्त मौर्य वाले होंगे तो उनके साथ मौर्य एम्पायर या चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा, और गुप्ता डायनेस्टी वाले हैं तो इसमें सिर्फ चंद्रगुप्ता लिखा होगा. ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, इन्हें विक्रमादित्य भी माना जाता था. वॉज वन ऑफ द री-ऑन्ड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो बहुत जो है अच्छे रूलर उस टाइम के माने गए थे, गुप्ता डायनेस्टी के सबसे अच्छे बोल सकते हैं आप. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड हिज माउंट वाहना, गरुड़,
और उनका जो वाहन था यानी कि जिस पे वो चलते थे, ठीक है, माउंट मीन्स वाहन, वाहन मीन्स चलते थे, तो उनके जो डिवोटी जिस भगवान की पूजा करते थे वो विष्णु थे, और उनका जो भगवान विष्णु जिस पे चलते हैं, जो उनकी गाड़ी है वो है गरुड़। ओफन अपीयर्स ऑन मैनी इंस्क्रिप्शन, तो उनकी जो है मतलब जब भी कहीं पे भी चंद्रगुप्ता के अगर आपको वो देखने को मिलते हैं इंस्क्रिप्शन, तो उनमें भगवान विष्णु और गरुड़ उन दोनों के बारे में ही अपीयर होता है, उन दोनों के बारे में बताए जाते हैं, उनकी पिक्चर्स होती हैं। नाउ डोंट मिस आउट, हैव यू नोटिस टू इन चंद्रगुप्ता, टू नेम, अब ये जो सेकंड वहाँ पर लगाया गया है, historians added this number because there was another चंद्रगुप्ता before him, his grandfather। अब हिस्टोरियन ने ही इनके नाम के आगे 2 लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि इनके जो दादा थे ना उनका नाम भी चंद्रगुप्त था, तो अब ये कन्फ्यूजन हो जाता कि कौन से चंद्रगुप्त की बात हो रही है, तो इसलिए हिस्टोरियन ने क्या किया, उनके नाम के आगे 2 लगा दिया। दिस ट्रेडिशन ऑफ नेमिंग द फर्स्ट सन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर इज फॉलोड बाय द सम इंडियन फैमिली इवन टुडे। तो ये एक ट्रेडिशन होता था कि अपने बेटे का नाम उनके अपने पापा के नाम पे यानी कि बच्चे के दादा के नाम पे रखते थे, कई जगह पर ये आज भी फॉलो होता है। चंद्रगुप्त एक या प्रथम as he is referred to played a crucial role in the early expansion of the Gupta empire। तो जो चंद्रगुप्त वन थे, जो पहले थे यानी कि इनके दादा जो थे, उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चंद्रगुप्त एम्पायर को बड़ा करने में या जो है उसको बढ़ाने में। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कोइंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब उन्हें याद किया जाता है कि वो जिस तरह के कोइंस उन्होंने उस टाइम पे इशू किए थे और जिस तरह से वो अलायंस करते थे बाकी किंगडम्स के साथ, विच हेल्प हिम कंसोलिडेट हिज पावर एंड ले फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, जिसकी वजह से उनकी पावर का पता चलता है कि वो अपनी पावर को किस तरह से यूज़ करते थे, बचा के रखते थे और किस तरह से अपने एम्पायर को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। नाउ गोल्ड कॉइन फीचरिंग चंद्रगुप्त वन विद हिज क्वीन, तो यहाँ पर वो चंद्रगुप्त वन और उनकी रानी दोनों ही हैं, और उसके बाद कुमारा देवी जो है रिवर्स साइड में एक देवी है, सिटेड आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी, जो इन्हें की जो है लक्ष्मी की तरह माना जाता है कि वो शायद लक्ष्मी होंगी एक तरफ पर, और एक तरफ पर चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी रानी। द वॉरियर किंग, द प्रयागया प्रशस्ति, पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज। सो प्रयागराज में जो है एक पिलर बनाया गया है जिसका नाम ही क्या रखा है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मीन्स तारीफ करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। प्रेजेज द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसमें जो है समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा की गई, अचीवमेंट बताई गई है। अब ये कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनके फादर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, अब जिसने वो लिखा है इंस्क्रिप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंग, द कोर्ट पोएट हरिसेना, अब कोर्ट पोएट थे जो कोर्ट में मतलब कविता वगैरह बताते, हरिसेना, द किंग्स एम्बिशन वॉज टू बी द धारनी बंधा ओ टू यूनाइट द अर्थ। तो वो बताते हैं कि किंग क्या बनना चाहते थे, कि यूनिफाई बनना चाहते थे अर्थ के लिए, मतलब अर्थ को एज अ माँ की तरह वो ट्रीट करते थे। सो टू दिस एंड ही फोर्ट मैनी वॉर्स, तो मतलब एक ही बनाना चाहते, यूनिटी आप बोल सकते हैं, यूनिफाई द अर्थ, यानी कि पूरे अर्थ पर वो कवर करना चाहते थे, अपना एम्पायर करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, डिफेटिंग किंग्स, बहुत सारे राजाओं को हराया, टेकिंग ओवर देयर किंगडम, उनके राज्य को अपने अंदर मिला लिया, एंड एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर को बढ़ाया। मैनी डिफेटेड किंग वर री इंस्टेटेड एंड ऑफर ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्ता, और बहुत सारे किंग ने उनकी जो हार गए थे उन्होंने उनकी बात मानी और अपना ट्रिब्यूट उन्हें देने लगे, जैसे कि मौर्यन एम्पायर में भी होता था कि एज ए टैक्स वो उनको देते थे और राज वो खुद ही करते थे। वाइल अदर फियरिंग हिज माइट सबमिटेड विदाउट प्रोटेस्ट, कुछ ने तो हार के उनके पास अपना जो है वो ट्रिब्यूटरी देना शुरू किया, और कुछ जो है उनके डर से ही कि वो तो इतनी लड़ाई करते हैं, उन्होंने बिना कोई लड़ाई के ही उन्हें अपना राजा मान लिया। Harisena also wrote about how the king supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful। हरिसेना ने ये भी बताया कि किस तरह से राजा जो है आर्ट को सपोर्ट कर देते, आर्ट, लर्निंग, ट्रेड, ये सारी चीज़ों में वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे उनको, जिसकी वजह से उनका किंगडम बहुत ही रिच और सक्सेसफुल हो गया था। समुद्रगुप्त हिमसेल्फ इज पोर्ट्रेड एज अ वीना प्लेयर इन वन ऑफ द कोइन ही मिंटेड। तो जब उन्होंने कॉइन बनाए थे तो उनमें जो है समुद्रगुप्त को ने खुद को भी दिखाया था वीणा बजाते। वीणा जो है जो जैसे कि पहले आपकी बुक्स के नाम भी होंगे, अभी जो हिंदी की बुक्स आ रही है 3rd 4th 5th क्लास में, उस बुक का नाम भी वीणा है। तो एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है। सो उसको जैसे यहाँ पर देखो, वहाँ पे ये शो किए हैं कि वो जो है वीणा बजा रहे हैं, और ये इंस्क्रिप्शन है जो हरिसेना ने लिखा था।
Now why do you think kings choose to proclaim their achievement in the form of inscription? तो क्यों ऐसा करते थे वो? So king choose to proclaim their achievement through inscription for several important reasons. To show their power and authority. वो अपनी power और authority show करते थे. Inscription on pillars, rocks and temples walls highlighting the king's victory, donation and titles, helping them establish their supremacy over other rulers. तो अपने खुद को दूसरों से supreme show करते थे. To leave a lasting legacy. Inscriptions were made on durable material like stone and metal. So these messages could survive for centuries and be remembered by the future generation. ताकि बहुत सालों के बाद भी लोगों को उनके बारे में पता चलता रहे, इसलिए भी हो सकता है. To inform the public, these inscriptions acted like public notice that informed people about the king's achievement, policy and religious belief. To gain respect and support. By praising themselves in the inscription, किंग होप टू अर्न रिस्पेक्ट, लॉयल्टी एंड सपोर्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स एंड अलाइज, ताकि बाकी लोगों को पता रहे कि कितने पावरफुल है तो वो लोग लॉयल रहें और रिस्पेक्ट करें. एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इंस्क्रिप्शन सर्व्ड एज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, बैटल्स एंड लैंड ग्रांट्स एंड रॉयल डिसीजन विच वर वैल्यूएबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर हिस्टोरियंस लेटर. Thus, inscriptions were a powerful way for kings to communicate their greatness and secure their place in history. तो लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है उसका एक तरीका था और अपनी एक प्लेस वो सिक्योर करते थे. Now let remember, ambitious king sometime performed the Aswamedha Yagya to build mighty empires and leave a legacy for the future. Such a significant event was commemorated by the minting special coin like one ancient figure in 7.7. तो जैसे यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है हमें. अब क्या होता था, लोग जो है अपने आप को अच्छा राजा बताने के लिए या फिर अपने एम्पायर बढ़ाने के लिए क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, जो हमने मौर्य एम्पायर में भी देखा. तो उसमें क्या करते थे, वो एक घोड़ा होता था जिसे वो जो है ऐसे ही छोड़ देते थे, उसके ऊपर कोई नहीं बैठा होता, तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, अगर किसी को उस घोड़े से दिक्कत है तो उसे वो रोक लेगा. तो उस घोड़े के साथ उस राजा की, जिस राजा ने उसे भेजा, उसके साथ उसकी पूरी सेना होती थी. अगर घोड़े को बिना रोके अगर आप जाने देते हैं तो डेट मीन्स आपने उस राजा का जो है मान लिया है अपना राजा. अगर आप उसे नहीं जाने देते तो उसके पीछे, घोड़े के पीछे पूरी सेना होती थी, आपको उनसे लड़ाई करनी होती थी. तो इसे अश्वमेध यज्ञ बोला जाता था. अब यहाँ पर देखो, अगर घोड़ा यहाँ पर दिया है, सो द कोयन डिपाइस्ड द सेक्रिफिशियल हॉर्स ऑफ द अश्वमेध यज्ञ, द रिवर्स डिस्पाइट द क्वीन होल्डिंग अ चोरी फ्लाई विस्क. ठीक है, सो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा दिखाया गया है. सम लिटरेरी सोर्सेज गिव अस डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन. तो कहीं पर जो है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन भी मिलती है रूलर्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में और लोगों के बारे में. द विष्णु पुराण फॉर इंस्टेंस. अब विष्णु पुराण जो है स्पेशली द की रीजन ऑफ द एम्पायर, जो कि उसका मेन जो है रीजन था एम्पायर का पूरा. द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा. अब अनुगंगा ये कहाँ है, मिडल गैंगेटिक बेसिन जो है वहाँ पर भी उन्होंने जो है रूल किया है. प्रयागा, प्रेजेंट डे प्रयागराज, साकेता, अयोध्या एंड मगधा जो कि बिहार में है, एंड ऑल द सराउंडिंग रीजन्स, और आसपास के सारे एरिया में. बट एट इट्स पीक, लेकिन जब वो अपनी ऊंचाई पर था पूरी, द गुप्ता एम्पायर कवर्ड अ लार्ज एरिया देन दिस. गुप्ता एम्पायर ने इससे भी ज़्यादा जगह पे कवर किया था, एरिया पे राज किया था. मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, ज़्यादातर जो है आज का नॉर्थ और वेस्ट इंडिया जो है उस पूरे पार्ट पर उन्होंने अपना जो है रूल किया था. अलोंग विद द पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया, साथ में ही सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया, मतलब लगभग पूरे पार्ट पर जो है उनका एम्पायर था. In the grade 6 chapter, Timeline and Sources of History, we listed multiple sources that help us understand the past, जिससे हमें past के बारे में पता चला. Compile a list of the sources we have referred to so far in this chapter. तो क्या क्या हमने सीखा? So here is the list. Refer to the chapter, the Gupta era, age of tireless creativity, and we found these. Iron Pillar of Delhi showed the Gupta Empire's advanced knowledge of metallurgy. Its rust-free condition proved their skill in metalwork. Prayag Prasasti, inscription by Hari Sena, gave detailed information about Samundragupta military campaigns, his ambition and support for art and learning. Coins, gold coin जो चंद्रगुप्ता ने और समुद्रगुप्ता से बने, revealed information about rulers, their titles, conquest and religious belief. सम कॉइन्स शोड किंग एज म्यूजिशियन और वॉरियर्स. तो बहुत सारी चीज़ें, उनके टाइटल, उनकी क्या क्या जीते वो, या फिर उनका रिलीजियस बिलीफ क्या है, वो हमें कॉइन से पता चला. फैक्सिगन ट्रैवल व्लॉग
जो कि चाइनीज ट्रेवल थे, डिस्क्राइब्ड सोसाइटी, गवर्नेंस, प्रोस्पेरिटी, चैरिटी एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। बट ऑल्सो मेंशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सो ये चीज़ें हमें पता चली कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी था और उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी थी। विष्णु पुराण लिटरेचर टेक्स्ट provided a list of religious under Gupta control and confirmed the importance of place like Prayag, Saket and Magda. टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जैसे कि अजंता उदयगिरी या देवगढ़ में है, शोड द आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, रिलीजियस डिवोशन एंड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द गुप्ता एरा. कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट give evidence for the administration and land ownership. They recorded gifts of land to priest and official. तो एक तरह से ये उनका प्रूफ रखते थे. वर्क ऑफ स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा, वर्मा, मीरा एंड कालिदास showed the flourishing of science, mathematics, astronomy and literature under गुप्ता पेट्रोल कि उस टाइम पे कितनी ये चीज़ें बढ़ रही थी. Now these different sources together help us understand the political, cultural, economic and social aspects of Gupta period. Imagine what it would have entailed to move a whole army of soldiers, elephants, horses, cooks and other sports staff as well as supplies to feed them all. Clearly the tributaries king must have been asked to provide for these. अब इमेजिन करो कि आपको एक आर्मी के साथ जाना है, आपके सोल्जर्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं, हॉर्स भी हैं, कुक भी हैं और दूसरा स्टाफ भी, तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर चलना और उन सब के लिए खाना भी लेकर चलना तो बहुत मुश्किल हो सकता था. तो इसलिए माना जाता है कि जो उनकी ट्रिब्यूटरी है तो क्या करते थे, वो सिर्फ अपनी आर्मी लेकर जाएंगे, हॉर्सेस वगैरह लेकर जाएंगे, कुक वगैरह, और जो खाना प्रोवाइड करेंगे या जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होगी वो उनकी ट्रिब्यूटरीज जो किंगडम्स हैं, जो राजा हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके लिए ईजी हो जाए. नाउ टेक अ पॉलिटिकल मैप फॉर इंडिया एंड लोकेट द प्रेजेंट डे states and union territory where the Gupta ruled. Mark the state on the map and count how many you found. Then compare your finding with your friend to see if everyone got the same number of discord. So जो figure 7.8 है from the chapter The Gupta Empire covered a large part of Indian subcontinent. I identify and mark the following present day Indian state and union territory where the Gupta ruled. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड असम. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब इन सारी जगह पर उनका रूल था. तो ये आपको मैप में शो करनी है सबकी सब. सो उनके फ्रेंड ने भी सेम फाइंड आउट किया. सम इंक्लूडेड पार्ट ऑफ कर्नाटका और तेलंगाना के भी कुछ पार्ट्स हैं गुप्ता कैंपेन में, और अदर्स मिस स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ एंड असम. कुछ ने जो छत्तीसगढ़ और असम जो है मिस किया और मैंने वो फाइंड आउट किया. तो आपके फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन करना है तो इस तरह से हो सकता है. दिस शो दैट इंटरप्रिटेशन में वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोजली वी ऑब्जर्व द मैप. तो इससे क्या पता चलता है कि हम जितनी क्लोजली मैप को देखेंगे उतना अच्छे से हम उन चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो कंक्लूजन क्या है, द गुप्ता इरा वॉज वास्ट एंड पावरफुल. मैपिंग देयर टेरिटरी हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ देयर रूल एंड एनकरेज जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल अवेयरनेस. सो जैसे ही हम उसको मैप पे बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना बड़ा उनका एम्पायर था, रूल कैसे थे, और उनका जो है इनकरेज करता है आज भी अवेयरनेस के बारे में, हिस्टोरिकल अवेयरनेस. यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें आपको, ये डेक्कन प्लेटू हो गया, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ, कामारूपा, वेंकटा, पल्लवना, तो ये सारे हैं. गुप्ता एम्पायर एक्सटेंड नोट डेट द वक्टकाज वर द अलाइज ऑफ द गुप्ताज. तो वो जो है उनके साथ अलाई करके रहते थे, यानी कि इनके साथ ही वो रहते थे. जैसे तुम बोलोगे वैसे हम कर लेंगे. द गुप्ता क्लेम टू हैव कनकर्ड पार्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट डाउन टू द पल्लवाज होम दे मे हैव ब्रीफली सबड्यूज. अब लगभग उन्होंने ईस्ट में भी कवर कर लिया था, ठीक है, वेस्ट में भी कवर कर लिया, लेकिन यहाँ के कुछ पार्ट में वो बोलते कि हमने कवर किया है. नाउ अ ट्रैवलर अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन गुप्ताज एज. अब एक ट्रैवलर तो उसी टाइम मौर्यन एम्पायर से आने लगे थे, सो उस टाइम पे भी एक ट्रैवलर आए हैं जिन्होंने इसके बारे में, गुप्ता एज के बारे में बताया है. सो चाइनीज ट्रैवलर फैक्सिन विजिटेड इंडिया इन द अर्ली फिफ्थ सेंचुरी सी. ही सेट आउट ऑन हिज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पिलग्रिम्स to visit sacred Buddhist site, learn from renowned Indian scholars and collect manuscript of Buddhist texts so he could take them back to China. अब यहाँ पर क्या है, वो आए यहाँ पर 15th सेंचुरी में सी में, मतलब उसके स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो पवित्र जो बोलते हैं यात्राएं वगैरह की. उसके बाद जो है बुद्धिस्ट की जो सैक्रेड पवित्र जगह थी वहाँ पर गए, उनके बारे में पढ़ा, स्कॉलर से जाना, और उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कलेक्ट की और उन्हें वापस चाइना लेकर गए.
Vexin traveled extensively across India, observing her culture, governance and society. तो उन्होंने जो है पूरी इंडिया में ट्रैवल किया, ऑब्जर्व किया कल्चर को, गवर्नेंस को, सोसाइटी को, और रिकॉर्ड किए एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द पीपल ऑफ हिज होमलैंड. और ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है अपने होमलैंड की और यहाँ सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की कि यहाँ का कल्चर कैसा है, गवर्नेंस कैसी, सोसाइटी कैसी है, और सारे एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया, देखा. उसके बाद वो अपने वहाँ पर गए, वहाँ के लोगों की, अपने होमलैंड के लोगों की ऑब्जर्व की सब चीज़ें. एंड फॉर अस टू, हमारे लिए भी, सिंस इस ट्रैवल लोग हैज़ सर्वाइव टू दिस डे, और उनकी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखा था वो आज तक भी हैं. बिलो इज़ एन extract from his travel logs where he recorded his observation of the society in the Gupta era. The people are numerous and happy. They have no need to register household or attend to official. Those who farm royal land pay a portion for their grain. The king guards and attendants have salaries. The cities are the greatest in the middle kingdom, यानी कि गंगेटिक प्लेन में. एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रोस्पेरस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटेजियस. हेड्स ऑफ वैश्याज फैमिलीज, मर्चेंट, वैश्य मतलब जो मर्चेंट होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं. एस्टेब्लिश हाउसेज फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन्स, and the poor, orphan and the sick are cared for. Doctors provided treatment and the needy receive food and medicine. The city has many wealthy Vaishyas elders and foreign merchants with beautiful homes. The lane are kept in a good order. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं. उन्हें जो है अपने घर को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिशियल में जाके अटेंड करने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को. जो अपना काम कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसमें से अपना ग्रेन देते हैं. और किंग के गार्ड और जो अटेंडेंट हैं उनको अलग से सैलरी दी जाती है. और यहाँ की जो सिटीज़ हैं वो जो मिडल किंगडम में है, यानी कि गंगेटिक प्लेन वाली जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, ग्रेट हैं, क्योंकि वो गंगेटिक प्लेन है तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है वो जगह. और जो इनहेबिटेंट है यानी कि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बहुत रिच है, प्रोस्पेरस है, और वो काइंडनेस को जो है प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि लोगों की हेल्प करते हैं. और जो वैश्य यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बहुत सारे चैरिटीज़ वगैरह और मेडिसिन्स करते हैं. जो पुअर हैं, ऑर्फन हैं, उनके लिए जो है अलग अलग हॉस्पिटल या दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं. डॉक्टर की ट्रीटमेंट उन्हें दी जाती है, जिनको खाना चाहिए उन्हें खाना दिया जाता है. और इस सिटी में बहुत सारे जो हैं वैश्य रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, और बहुत सारे फ़ॉरेन दूसरे देशों से मर्चेंट्स आते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ब्यूटीफुल होम्स हैं जो इस तरह से लाइन में लगे हैं या बनाए गए हैं. मतलब एक तरह से ये है कि इनको जो है ढंग से, मतलब एक बहुत ही अच्छी और प्रोस्पेरस यहाँ पर बताया गया है गुप्ता एरा के बारे में. Read the extract from Faxigan given above and identify the key features of the society he described. Write down your observation and compare your notes with your friend. तो कुछ अलग भी हो सकता है, वो आपको करना है. सो हमने जो अभी ट्रैवल व्लॉग पढ़ा है उससे कौन कौन से की फीचर्स पढ़े पता चले. पीस एंड प्रोस्पेरिटी, पीपल वर डिस्क्राइब्ड एज न्यूमरस एंड हैप्पी. The cities were large, wealthy and well organized. Good governance, there was little interference from official. Only those farming royal land has to pay grain as tax. जो सिर्फ royal land पे farming करते हैं उन्हें टैक्स देना सिर्फ. Care for poor and sick. Charity houses and hospitals were established by the rich Vaishya merchants. Free treatment, food and medicine were provided to the poor, sick and orphan and needy. Role of Vaishyas. A wealthy Vaishya's family played a major role in the charity and public welfare. Urban life. Cities had well-kept lanes and beautiful houses. There were foreign merchants living in the cities, showing active trade and cultural exchange. अब आपके फ्रेंड के साथ आपको कंपेयर करना है, जैसे कि सम फ्रेंड्स फोकस्ड मोर ऑन द इकोनॉमिक एक्सेप्ट सच एज ट्रेड एंड टैक्सेस. अदर हाईलाइटेड सोशल वैल्यूज लाइक काइंडनेस एंड चैरिटी. अ फ्यू पॉइंटेड आउट दैट फैक्सिन्स व्यू मे बी आइडियलाइज्ड and doesn't represent the condition of all people such as Chandalas. So, Faxigan account give us a positive image of Gupta society, prosperous, peaceful and compassionate. However, comparing with other help us realize that different perspective give a more complete understanding of history. अगर हर जगह से हमें पता चलेगा तो हम उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं. Outcast. Someone who has been rejected from a social or cultural group. In this case, a category of people considered socially too low or to be a part of वर्ण system. So उस टाइम पे वर्ण सिस्टम होता था. 4 वर्ण होते थे. सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र.
सो ब्राह्मण का काम है वो पढ़ाते थे या चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे या यज्ञ वगैरह जो होते हैं वो करेंगे। क्षत्रिय का काम होता था जो राजा है वो या युद्ध वगैरह करना वो काम करेंगे। वैश्य का काम होता था कि वो क्या करेंगे, जो भी क्या था अभी ट्रेड वगैरह या ये सब चीज़ें करेंगे। शूद्र का काम था इन तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करना, काम करना, ठीक है, मतलब देश के अंदर रह के काम करेंगे। अब ये कोई भी काम कर सकते जो इन्हें सही लगे। धीरे धीरे इनको अलग तरह से कास्ट सिस्टम में ला दिया गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ज़रूरी नहीं कि आप अगर शूद्र में पैदा हुए शूद्र ही होंगे, आप क्षत्रिय भी बन सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना वर्ण डिसाइड करते थे। लेकिन आउटकास्ट क्या हो गया, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को जैसे कि ये बोल दिया कि तुम इसके लायक ही नहीं हो, तो ना तो उससे कोई उस टाइम पे बात करेगा ना ही कुछ और करेगा, उसको बिल्कुल वहाँ से निकाल देते थे। सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक फैक्शंस आर वैल्यूएबल सोर्सेज। तो बहुत वैल्यूएबल सोर्स है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, बट दे रिफ्लेक्ट ओनली द राइटर परस्पेक्टिव एंड फोकस एट वन पॉइंट इन टाइम एंड फ्रॉम अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी दे डिस्क्राइब। लेकिन अब इससे क्या होता है, हमें सिर्फ राइटर का परस्पेक्टिव समझ आता है कि उसने क्या क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, और जिस टाइम पे वो जहाँ था हमें तो वही चीज़ पता चलेगी, उसके बाद आसपास में क्या हो रहा है वो नहीं पता। सो इससे जो है हमें थोड़ा सा पोर्शन ही पता चलता है सोसाइटी का। लेट अस नोट हाउ एवर फॉरगेट द एल्सवेयर इन हिज ट्रेवल वॉक। Faxin also describe the harsh treatment of the चांडाल्स। अब चांडाल भी जो है एक जो है क्या था, मतलब डायनेस्टी थी, तो वो बोलता है कि इनके जैसे फैक्सिन ही है इन्हीं के बारे में कि इनका एक जगह और इन्होंने डिस्क्राइब किया है जहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था लोगों को, हु वर रिगार्डेड एज आउटकास्ट, जिनको कास्ट में से निकाल दिया जाता था और सिटी के बाहर उन्हें रखा जाता था, उनसे कोई बात नहीं करेगा, मतलब उन्हें बहुत नीचा समझा जाता था इस तरह से। और जो चंडाल से उनमें जो है इन लोगों को बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। जस्ट एज यू मे हैव परसीव्ड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फैक्ट्स इन ट्रैवल वॉक डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे कि तुमने इसको अलग तरह से देखा, तुम्हारे फ्रेंड ने अलग तरीके से देखा। अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन मे एग्जामिन द सेम सोर्स एंड ड्रॉ वेरिड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम इट। अब हो सकता है जो हिस्टोरियंस है वो अलग अलग इसे देखेंगे और अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे इसका। हिस्टोरियन देन लुक एट द मोर सोर्स टू कोलेबरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, आसपास के और सोर्सेज इकट्ठा किए और तब अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई। दिस रिमाइंड अस ऑफ द नीड ऑफ एक्सेस मल्टीपल सोर्सेज, जिससे जो है हम ज़्यादातर सोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो सकता है बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें एक ही चीज़ पर जो है पूरी तरह से जो है डिपेंड नहीं रहना है, हमें बाहर दूसरी चीज़ों को भी एक्सेस करना है, सोर्सेज पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, एंड देन अपना कंक्लूजन वहाँ ड्रॉ करना है। Glimpse of the Gupta Empire, Governance and Administration. Let us observe the map in figure 7.8. You will notice that many kingdoms coexisted during the same period. So 7.8 में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ही साथ बहुत सारे किंगडम उसी टाइम पर रहते थे। तो हमेशा ही होता है एक साथ ज़रूरी थोड़ी कि एक ही राजा हर जगह पे रूल करेगा, तो बहुत सारे किंगडम्स होते थे। सम ऑफ देम मे हैव बीन एट वॉर विद ईच अदर इन देयर एम्बिशन टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल। और कई बार वो एक दूसरे से युद्ध भी करते थे ताकि उनका जो है किंगडम बड़ा हो जाए। रिकॉल वट वी सो अर्लियर अबाउट कौटिल्यज आइडिया ऑन रूलिंग अ किंगडम। सो कौटिल्य ने क्या बोला था, अपने उनका जो किंगडम का आइडिया था कि आप किसी भी जगह पे राज्य कैसे कर सकते हैं, रूल कैसे कर सकते हैं। ही एडवाइज रूलर टू फॉर्म अलायंस। उन्होंने बोला था कि रूलर्स को अलायंस बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सप्तंगा। तो क्या था वो सप्त अंग जो उन्होंने बताए थे कि किसी भी किंगडम के लिए 7 अंग या 7 पार्ट्स होते हैं जिसमें एक है अलायंस। तो उनके लिए अगर आपको किसी को अपना किंगडम में पार्ट बनाना है तो उनसे दोस्ती करो, ना कि लड़ाई। दोस्ती करोगे तो वो आपके पास रहेंगे, आपके एज ए लॉयल रहेंगे, लेकिन अगर आप उनसे लड़ाई करते हो तो कभी भी जो है आपके खिलाफ दोबारा से आ सकते हैं। New King, New Tiles. Inscription and coins provide valuable insight into the tiles adopted by the Gupta rulers. So अलग अलग वैल्यूज़ आई, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, such as महाराजा धीराज, सम्राट एंड चक्रवर्ती. These titles reflected their claim to supreme authority and emphasized their superiority on the earlier ruler who used simpler title like राजन एंड महाराजा. सो अब नए नए जो इंस्क्रिप्शन आई या कोइंस आए तो उनमें जो गुप्ता रूलर ने अलग अलग नए वर्ड्स यूज़ किए थे अपने लिए, जैसे महाराजा धीराज, सम्राट, चक्रवर्ती. ये वर्ड किस लिए यूज़ किए थे, ये टाइटल बताते थे कि ये बाकी लोगों से सुप्रीम है, बड़े हैं,
और एम्फोसाइज होता था इनकी सुपीरियरिटी की, कि ये बाकी लोगों से अलग है, सुपर है। उन्होंने जो पहले के किंग थे उन्होंने सिंपल वर्ड्स यूज़ किए थे, राजन, महाराजा, तो इन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छे या पावरफुल वर्ड यूज़ करना चाहा था। द गुप्ता रूलर यूज वेरियस स्ट्रेटजीज, उन्होंने अलग अलग चीज़ें यूज़ की, मिलिट्री कंक्यूस्ट, डिप्लोमेसी, अलाइंस टू एक्सपेंड एंड कॉन्सिलेटेड देयर वेस्ट एम्पायर। तो उन्होंने सब कुछ किया अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रीमोनियल अलायंस, उसके बाद उन्होंने मैट्रीमोनियल अलायंस भी किया, यानी कि दूसरे किंगडम में अपने में मिलाने के लिए वहाँ से शादी वगैरह करना। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इज डेट ऑफ प्रभावती गुप्ता। सो इसका एक एग्जाम्पल प्रभावती गुप्ता भी है, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनकी बेटी थी। हु वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वकटा किंगडम, जिन्होंने जो है वकटा किंगडम में क्या किया, शादी की गई। द गुप्ता नेबर्स टू द साउथ, जो कि साउथ में गुप्ता के नेबर्स थे, जो अभी मैंने दिखाया था। ट्रेजिकली द वकटा प्रिंस डाइड अर्ली, लेकिन वो जो है जल्दी ही मर गए थे। मेकिंग हर द रीजेंट रूलर टू ऑफ द किंगडम, तो अगर वो मर गया तो कौन उसके बाद रूलर बनेगा, तो वो जो है चंद्रगुप्त सेकंड की जो बेटी थी वो ही रूलर बनी वहाँ पर। ड्यूरिंग हर रेन सी एंश्योर दैट द टाइज बिटवीन द वेंकटा एंड द गुप्ता रिमेन स्ट्रॉन्ग। सो उनका मेन था कि जो वकटाज हैं और जो गुप्ता हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हर एज अ मदर ऑफ टू किंग्स। अब उसमें जो है अपने इंस्क्रिप्शन में उन्हें एक जगह लिखा भी है कि वो दो राजाओं की माँ है, रेफरिंग टू हर टू सन हु असेंडेड द वेकटाज थ्रोन। तो उनके जो है दो बेटे थे जो कि उनके बाद में जो है जो वैकटास जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, वो लेने वाले थे। एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, वो भी विष्णु की डिवोटी थी, भगत थी। प्रभावती इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल डेडिकेटेड टू दिस गॉड। तो उन्होंने जो है इस तरह के 7 टेम्पल जो है भगवान विष्णु के बनाए थे, एंड हिज अवतार, इनके अलग अलग अवतार के। सम ऑफ दीज टेम्पल आर इन रामागिरी, रामटेक हिल जो है वहाँ पर अभी भी है, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। तो वो टेम्पल आज भी आपको देखने को मिलते हैं। रीजेंट रूलर, रीजेंट टेम्परेली गवर्नर अ किंगडम फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू टिल दे कैन। सो रीजेंट रूलर ही वो बनी थी, यानी कि देखो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे और बेटे अभी छोटे थे, तो इसलिए उस टाइम के लिए, जब तक कि उनके बेटे बड़े ना हो जाए, तब तक के लिए उन्हें रानी बनाया गया था। So the Kevala Narsimha temple, dedicated to Narsimha, one of the avatar of Vishnu, according to some historians. This temple was constructed by Padmavati Gupta, daughter, in her memory. So ये जो है पद्मावती गुप्ता ने ही ये बनाया है, उन्होंने ही यहाँ पर। Observe the painting of Prabhavati Gupta sitting in her court. Take note of the detail, her attire, posture, and the people around her. And the sitting of the court. What do these elements tell you about her life, role, and the time she lived in? Discuss your observation in the class. So उस पिक्चर को देखने के बाद में क्या क्या है? अटायर, she is dressed in rich royal garments and adorned with jewelry indicating her high status and royal lineage. Posture, Prabhavati is seated confidently and centrally, showing that she held authority and respect as a regent queen. People around her, attendant, ministers, and possibly scholars or officials, are standing respectfully nearby, suggesting she preside over court matters and was involved in governance. Court setting, the court is decorated with pillars, drapes, and carvings reflecting the artistic and architectural richness of the Gupta's period. Interpretation of her life. Prabhavati Gupta's lived during a time when women of royal families could exercise political power, especially as regents. She played an important role in maintaining alliance between the Guptas and the Vakatas. The respectful environment and her central position show she was highly educated, capable, and reversed. The setting reflects the prosperity, culture, and elegance of the Gupta's era. अब क्या क्या आप डिस्कशन कर सकते हैं? सम फ्रेंड फोकस ऑन हर रिलीजियस डिवोशन टू विष्णु एज सीन फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. Other noticed how women's leadership was possible under certain conditions. We all agreed that this painting symbolized a time of intellectual, political, and cultural richness. Conclusion. The painting of Prabhavati Gupta in court tells us that she was a powerful and respected woman, leader in a flourishing empire. Her life reflects the progressive and vibrant society of the Gupta's period.
नाउ द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी बहुत ऑर्गेनाइज था. इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी दे डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंस एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स, प्रेस्ट एंड चिफ्शन. सो इन्होंने क्या किया, सारी पावर अपने पास ना रख के वहाँ पे लोगों को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स को, जिसमें जो है कुछ रूलर होते थे, कुछ प्रिस्ट हैं, कुछ चीफशन जो होते हैं वो उन जगहों को रूल करते थे, देखते थे. दीज लैंड ग्रांट वर केयरफुली इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स. अब जो भी इन्हें चीज़ दी जाती थी उनका पूरा जो है कॉपर प्लेट पे इनको इंस्क्राइब किया जाता था और पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था. मैनी ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिसेंट टाइम. कुछ जो है अभी जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ भी ली हैं. This system helped ensure proper tax collection and allowed the Gupta rulers to govern efficiently while still giving local leaders some control over their region. अब इससे क्या होता था, गुप्ता एम्पायर की भी पावर भी सही रहती थी, टैक्स कलेक्शन भी सही में होता था और उनका जो रूल था वो भी सही से चलता रहता था एफिशिएंटली, और जो लोकल लीडर्स थे उनका रूल भी चलता रहता था, तो दोनों ही खुश रहते थे. Thriving trades. So the primary source of revenue of the Guptas was land tax. So इनका जो main revenue था वो था land tax जो होता था वो. Other sources including fine, taxes on mines, irrigation, trade and crafts. These revenue was used for administration, maintaining the army, building temples and infrastructure and supporting scholars and artists. और बाकी जो माइन से टैक्स आता था, इरिगेशन से, ट्रेड से, क्राफ्ट से, इन सारे टैक्सेस से वो रेवेन्यू से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे, आर्मी के लिए मेंटेन करने के लिए जो है रखते थे, टेम्पल वगैरह बनाना, अलग अलग चीज़ें बनाना, और जो स्कॉलर और आर्टिस्ट थे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते थे. एज वी सी वंस अगेन, फॉर सच एन एम्पायर टू सस्टेन इटसेल्फ इट हैड टू प्रमोट अ वाइब्रेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर आपको इतने बड़े एम्पायर को रखना है या उस पर रूल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा. ये ट्रेड जो है दोनों ही जगह पर होना चाहिए. In the Gupta era, India traded with the Mediterranean world, Southeast Asia and China, exporting textiles, spices, ivory and gemstone. तो सब चीज़ें जो उस टाइम पे एक्सपोर्ट होती थी. The Indian Ocean Trade Network connected Indian ports to distant markets. और जो इंडियन ओशन था वो जो है इंडियन पोर्ट्स पे आकर इन मार्केट से अलग अलग मार्केट में आकर वो जो है अपना ट्रेड करते थे. One significant stop on the way to the Mediterranean markets was Skotra Island. सो एक जो आइलैंड है स्कोट्रा जो उनका मेन स्टॉप होता है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में था. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सच एज पोट्री, इंस्क्रिप्शन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड डिजाइन सच एज बुद्धिस्ट स्तूपा has established the presence of Indian traders there over several centuries, apart from the traders from इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस. अब वहाँ पर जो ये जगह है जो कि अरेबियन सी में है, वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस फाइंड आउट किए तो वहाँ पर जो पोट्री मिली है, इंस्क्रिप्शन मिली है, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है. ब्रह्मी स्क्रिप्ट तो इंडिया में थी उस टाइम पे. बुद्धिस्ट की जो स्तूप हैं वो डिज़ाइन वगैरह वहाँ मिले हैं. तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर इंडियन ट्रेडर जो थे उनका जो है प्रेजेंस वहाँ पे ज़्यादा था बहुत सेंचुरी तक, जबकि इजिप्ट, अरेबिया, रोम से जो ट्रेडर्स थे उनका उतना नहीं था. The small island carries evidence of the rich cultural exchange that the trade promoted in the Indian Ocean. So ये जो छोटा सा आइलैंड है इसमें हमारे एविडेंस, हमारे रिच कल्चर के कि किस तरह से जो एक्सचेंज होता था चीज़ों का इंडियन ओशन और अरेबियन सी में जाकर वो सब चीज़ें, तो उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है एविडेंस यहाँ मिलते हैं. न्यू आइडियाज़ एंड वंडर्स द क्लासिकल एज. एज वी सो गुप्ता रूलर वर डेवोटी फॉलोवर्स ऑफ विष्णु. तो जो विष्णु के फॉलोवर थे, दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन देयर कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन. तो ये जो इनके कोइन और इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलता है. हाउएवर दे ऑल्सो सपोर्टेड अदर ट्रेडिशन एंड स्कूल ऑफ थॉट्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाकी किसी भी देवी देवता को नहीं माना, उन्होंने बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स से बाकी जो देवी देवता हैं उनकी भी पूरा सपोर्ट किया है. दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस. तो उन्होंने बुद्धिस्ट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्राथमिकता दी, इंक्लूडिंग द रियोन नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सेवरल अदर बुद्धिस्ट विहार्स, यानी कि मोन्टेंसरी वगैरह भी बनाई, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई. देयर अप्रोच वाज इंक्लूसिव एंड ओपन. सो उन्होंने जो है अप्रोच जो थी उनकी हमेशा मतलब सबको एक साथ लेकर चलने वाली थी. वी विल एक्सप्लोर दिस इंस्टीट्यूशन फर्दर इन हायर ग्रेड्स. अब जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आगे भी.
सो ये जो है सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसमें बोलते थे कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। और जब एक मुस्लिम आई थिंक आए थे कोई, उन्होंने इसको जलाया तो ये कम से कम भी 2-3 महीने तक जलती रही थी, इतनी सारी बुक्स इसके अंदर थी। तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उस टाइम पे, उसके कुछ अवशेष कुछ जगह अभी बची हुई हैं। Indeed, the prolonged period of peace and stability during the Gupta period promoted notable achievement in various fields, leading some historians to label this period the classical age. अब इस पीरियड में सब कुछ सही से चल रहा था, स्टेबिलिटी थी, अच्छे से ट्रेड होता था, सब लोग शांति से रह रहे थे। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें अचीवमेंट की तरह काम कर रही थी, तो इसलिए हिस्टोरियंस ने इसको क्लासिकल एज बोला इंडिया की। इट वॉज ऑल्सो द टाइम when knowledge from previous era was consolidated and compiled into numerous texts। और यही टाइम था जो पुराने टाइम की जो चीज़ें होती थी, जो नॉलेज थी, उनको कंबाइन करके टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर रखा जाता था। संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड, फिर से संस्कृत लिटरेचर जो है अपने चरम पे था, बढ़ता जा रहा था। विद कालिदास वर्क्स एंड मैनी मेजर पुराण, तो कालिदास जो है हमारे पोएट जो है उनके बारे में भी है यहाँ पर, उनके बहुत सारे जो है पुराण भी हमें मिले। आर्यभट्टा, वाहरा मीरा रिकॉर्डेड मेजर एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इनके जो टेक्स्ट थे, इन्होंने जो टेक्स्ट लिखे उसमें जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बहुत एडवांस चीज़ें हमें पता चली। वाइल मेडिसिन टेक्स्ट कंपाइल्ड एंड रिफाइंड मेडिकल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, और जो मेडिकल जो टेक्स्ट मिले थे उनको कंपाइल किया गया, एक साथ रखा गया, और मेडिकल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस भी बहुत होने लगी, तो वो भी अच्छे से हो गई, रिफाइन हो गई। मेटल ग्री ऑल्सो प्रोग्रेस्ड, और मेटल से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत प्रोग्रेस हो गई थी। एज वी सो विद द रस्ट रेजिडेंट्स आयरन पिलर, जैसे कि हमने वो आयरन पिलर देखा, अभी तक भी उसमें रस नहीं है। This stability strengthened the economy, allowing the state to support scholars, artists, and scientists, leading to cultural and intellectual growth। अब स्टेबिलिटी हर जगह थी इकोनॉमी में, तो जो स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल थी, वो सारी चीज़ें ग्रो करने लगी, क्योंकि अब लोग उन चीज़ों पर ध्यान देने लगे। Chandragupta too kept himself surrounded by many learned men, poets and artists, and his patronage of such diverse talent enriched his court greatly। अब चंद्रगुप्ता जो द्वितीय थे, सेकंड थे, वो जो है अपने आप को हमेशा बहुत सारे लोग जो समझदार थे, लर्नर, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, पोएट है, आर्टिस्ट है, हमेशा उनके बीच में रहते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते थे। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ रिमार्केबल फिगर ऑफ दिस पीरियड। सो कुछ लोगों के बारे में देख लेते हैं। अब ये चंद्रगुप्ता द्वितीय जो है लड़ाई के लिए कहीं पर जा रहे हैं, वॉर के लिए, एंड आर्टिस्ट इमेजिनेशन है 1920 में किस तरह से वो गए होंगे। आर्यभट्टा, ये क्या थे? ही लिव्ड इन कुसुमपुरा near present day Patna, a famous center of learning. Around 500 CE and authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टिया। सो ये जो है आर्यभट्टा, ये जो वहाँ रहते थे, जो आज का पटना है, लर्निंग के लिए फेमस सेंटर उस टाइम पे माना जाता था, लगभग 500 CE के टाइम पे। सो इन्होंने मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी के लिए कुछ बुक्स लिखी। ही गेव फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द मोशन ऑफ द सन, the moon and the planet, and proposed that the earth spins on its axis, which explain the alteration of day and night. He gave the length of the year as 365 days, 6 hours and 12 minutes and 30 seconds, just a few minutes of the modern values, जो कि 365 5 hours 48 minutes and 45 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पर देखो, इन्होंने ये भी बताया, बुक भी लिखी, उन्होंने फॉर्मूला दी कि किस तरह से आप सन के मोशन को, मून को, या प्लेनेट के मोशन को देख सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, सन नहीं रिवोल्व करता है, अर्थ ही स्पिन करती है, रिवोल्व करती है अपने एक्सिस पर। उन्होंने, और उसी की वजह से हमारे दिन रात भी होते हैं। उन्होंने जो है ये भी बताया था कि एक साल जो है 365 डेज 6 ईयर एंड 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स का होता है, जो कि हमारे आज के मॉडर्न वैल्यू के लगभग पास में ही है। आर्यभट्टा also provided a fair estimate of the size of the earth and correct explanation of solar and lunar eclipse। उनके पास जो है अर्थ का भी जो उन्होंने करेक्ट एस्टिमेट साइज बता दिया था, और लोनार और सोलर एक्लिप्स कैसे बनते वो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। दिस वर्क बिकम द फाउंडेशन ऑफ फर्दर साइंटिफिक एडवांस इन इंडिया एंड बियॉन्ड, जिससे जो है आगे भी इंडिया में इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च मतलब एडवांस बहुत ज़्यादा हो गई थी। इन मैथमेटिक्स आर्यभट्टा डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग, some of which you learn at school without knowing that they were first formulated 1500 years ago, जिनमें से आप कुछ अभी पढ़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है, कैलकुलेशन है, जो इन्होंने फाइंड आउट की थी।
Varahamira, he was a mathematician, astronomer and astrologer फ्रॉम द सेम पीरियड, उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये थे आर्यभट्टा थे उसी टाइम के हैं. तो एस्ट्रोनोमर मतलब बहुत एस्ट्रोलॉजर भी थे उसी टाइम की. ही लिव्ड इन उज्जैनी, अ सिटी फेमस फॉर हिज ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप. हिज एकोक्लोपिटिक वर्क बृहत Samhita covered a wide range of subjects from astronomy and astrology or to weather forecasting, architecture, town planning and even farming. So ये सारी चीज़ें भी आपको इनसे पता चली. His ability to observe the world, applying logical reasons and combine it with traditional knowledge made him a pioneer in science. तो इन्होंने जो कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेदर फोरकास्ट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग कैसे करनी है, यहाँ तक कि फार्मिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी और वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया और लॉजिकल रीजनिंग इन्होंने दी और उसको ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जो है मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया. तो इन्हें जो है साइंस का पायनियर बोला जाता है, यानी कि आप सेंटर इन्हें बोल सकते हैं साइंस का. Let's join Bhavish and Dhruv with their time machine in the time of the Guptas. You are getting an opportunity to meet Aryabhatta and Varahamira. What would you ask them? Divide the class into the two groups. So let's imagine the class is divided into two groups. Interview with Aryabhatta. तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके होंगे वो बताने. What inspired you to study astronomy and mathematics? How did you calculate the length of the year so accurately without modern tools? Can you explain your idea about the Earth rotating on its axis? What method did you use to explain eclipse? How did people during your time react to your scientific ideas? What is your most important message for future scientists? और वारामीरा के साथ जो इंटरव्यू होगा, how did you gather so much knowledge on a wide range of topics? What is your most important work and what does it include? How did you combine observation with tradition in your writing? Did your prediction about weather and astronomy help the common people? What role did the city of Ujjain play in your learning? How do you think your work influenced scholars after you? So these questions help us understand the contribution, thinking and the scientific spirit of two of the greatest minds from the Gupta era. This activity connects history with curiosity and imagination, making learning fun and meaningful. इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं. इसके बाद आते हैं कालिदास पोएट थे. So little is known about Kalidasa's life. Legend suggests that he was one ridiculed by other, which motivated him to work hard and transform his life. So दूसरे लोग जो है इन्हें मतलब हमेशा छोटा समझते थे इस तरह से, तो उन्होंने अपनी बहुत मोटिवेट किया, खुद को बहुत मेहनत की और अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया. He is renowned for his contribution to Sanskrit literature and executively refined poetry. तो इन्होंने जो संस्कृत लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया और साथ में इनकी जो पोइट्रीज़ हैं वो आज तक भी बोली जाती हैं. वन ऑफ हिज सेलिब्रेटेड कंपोजिशन इज़ मेघदूतम. एक जो इनकी कंपोजिशन है वो मेघदूत और द क्लाउड मैसेंजर बोला जाता है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यक्षा, जिसमें यक्ष की स्टोरी बताई जाती है, एक माइनर डायटी हु आफ्टर बीइंग बैनिश्ड फ्रॉम हिज होम बाय हिज मास्टर, जिसको जो है उनके मास्टर ने वहाँ से निकाल दिया था अपने घर से. सेंड्स अ मैसेज टू हिज बिलवर्ड थ्रू अ पासिंग क्लाउड. तो वो अपने एक क्लाउड से जाते हुए अपना एक मैसेज उन्हें देते हैं. अपार्ट फ्रॉम द मैनी इमोशंस ऑफ लव, द पोएम डिस्क्राइब्ड इन ग्रेट डिटेल द लैंडस्केप एंड वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑन इट्स जर्नी टू द बिलवर्ड. अब ये मैसेज तो वो दे रहे हैं कि वो अपनी बिलवर्ड को अपना मैसेज दे रहे हैं, तो क्लाउड के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन क्लाउड जैसे ट्रैवल करता है तो उसमें इमोशन ऑफ लव के साथ में उस पोइट्री में, पोएम में दिखाया गया है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ का वेदर कैसा है, लैंडस्केप कैसा है, क्योंकि क्लाउड जहाँ जहाँ से जाएगा उसे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो पोएम में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं. नाउ डोंट मिस आउट. कोडिफाइड, अरेंज्ड और रिटन इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे, जब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखा हो. सो डिड यू नो डैट आयुर्वेदा गोट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. सो आयुर्वेद को भी अच्छे से लिखा गया था गुप्ता के टाइम पर. दिस इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ मोर मच ओल्डर रूट्स गोइंग बैक सेवरल सेंचुरी BCE. तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था मेडिसिन का वो बहुत पुराना है, बहुत टाइम से जो है उसमें मतलब मेडिसिन वगैरह का काम चलता रहा है. टेक्स्ट लाइक द चरक संहिता और सुहस्त्र संहिता विच लेट द फाउंडेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टिल इन यूज टुडे.
सो जो है फाउंडेशन है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस वो आज भी यूज़ पर हैं, जो चरक संहिता में उस टाइम पे बताई गई थी। वर कंपाइल्ड एंड गिवन देयर फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इन सबको कंपाइल किया गया और एक ही इनकी बुक बना दी गई गुप्ता पीरियड के टाइम पे। दे डील विद अ वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक। इसमें बहुत सारी जो हैं टॉपिक एक ही साथ आते हैं। द कैटलॉगिंग एंड डायग्नोजिंग ऑफ डिजीज, देयर ट्रीटमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जिकल टेक्निक्स एडवांस फॉर देयर टाइम। तो इन बुक्स के अंदर जो आप इनका कैटलॉग देखोगे और किस तरह से इन्होंने डिज़ीज़ को कैसे पता लगाना है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए डाइट किस तरह से इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करनी है, सर्जरीज कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं जो आज के टाइम पे हम करते हैं। Importantly, Ayurveda emphasize holistic healing and a deep connection between the mind, body and nature. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में होलिस्टिक हीलिंग होता है, यानी कि आपको सिर्फ सर में दर्द हो रहा है तो सिर्फ उसका होगा, नहीं, वो पूरी बॉडी में इनकी जो मेडिसिन होती है वो इस टाइप से होती हैं जिनमें जो है डीप कनेक्शन होता है आपके माइंड, बॉडी एंड नेचर। तो आपकी एक चीज़ अगर सही होगी तो वो पूरा डीप हीलिंग होता है, सब कुछ सही होगा। द क्वेस्ट ऑफ ब्यूटी, द गुप्ता रूलर created a supportive environment where creativity and craftsmanship thrived. Some of the iconic work of history were produced during this time. तो बहुत सारे वर्क भी इस टाइम पे प्रोड्यूस हुए थे। Many key center of art emerged during this time. बहुत सारे जो है आर्ट भी इस टाइम पे निकल के आने लगे, इंक्लूडिंग सारनाथ जो कि वाराणसी में है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, नोन फॉर इज एग्जीक्यूटिव स्कल्पचर ऑफ द बुद्धास एंड द ओ इंस्पिरेशन अजंता केव्स, और अजंता केव जैसे बनी है जो कि आज महाराष्ट्र में है। सो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। द रॉक कट केव्स एंड डिटेल क्राविंग्स ऑफ डाइटीज एज उदयगिरी जो कि मध्य प्रदेश में है। सो कैसे रॉक को कट किया गया और कैसे उन्हीं के अंदर जो है भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस अबंडेंट आर्टिस्टिक प्रोडक्शन की किस तरह से उस टाइम पे आर्टिस्टिक के आर्टों के पास जो आर्टिस्ट होते थे उनके पास कितनी जो है एडवांस चीज़ें होंगी जो उन्होंने ये सब किया है। अगर बिना एडवांस चीज़ों के किया है तो पूरी रोक को कट कर उनके अंदर डाइटीज़ वगैरह और सब चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल काम था। गुप्ताज आर्ट एट इट is sometimes called set high standard for aesthetic and beauty that left a lasting impact. सो गुप्ता आर्ट जो है जिसको कई बार बोला जाता है कि इसने सारी आर्ट्स के लिए एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे वहाँ पर, जैसे इनकी ब्यूटी थी या जो भी चीज़ें होती थी। नाउ टेक अ क्लोज लुक एट द सैम्पल ऑफ द गुप्ता स्कल्पचर शोन इन फिगर 7.15.1 और सेम 2 वाले में भी। बाय लुकिंग एट द एट्रीब्यूट्स कैन यू गेस विच डाइटीज एंड डिपाइसेड हेयर। अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सो फर्स्ट में क्या है, लाइकली विष्णु, द फिगर अपीयर काम, मैजेस्टिक एंड सिमेट्रिकल शो इन गुप्ता स्टाइल। द डाइटी इज होल्डिंग सिम्बोलिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चक्र या शंख इन हिज हैंड। द क्राउन ऑर्नामेंट्स एंड पोस्चर सजेस्ट दिस इज अ लॉर्ड विष्णु, द प्रिजर्व गॉड। द फेशियल एक्सप्रेशन इन सेनर सिम्बलाइजिंग पीस एंड बैलेंस। डाइटी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि गंगा या यमुना होगा सेकंड वाले पिक्चर में। दिस स्कल्पचर लाइक शो 2 फीमेल डाइटीज स्टैंडिंग ग्रेसफुली। 1 फिगर स्टैंड ऑन मकारा, अ मिथिकल क्रोकोडाइल जैसा क्रिएचर है विच रिप्रेजेंट गंगा। The other figure stand on a tortoise, the Vahana of Yamuna. Both figure hold water pots, reinforcing their connection of sacred rivers. So, these sculpture are excellent example of Gupta artistry, showing refined features, symbolize attributes, and deep religious meaning. They help us understand how deities and natures were beautifully represented in the ancient Indian arts. The decline of the Guptas. तो अब अगर कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो वो डिक्लाइन भी होता है उसका। बाय द 6th century CE, द गुप्ता एम्पायर बिगन शोइंग साइन ऑफ डिक्लाइन एज अ लेटर रूलर फेस चैलेंजेस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। सो अब 6th century के बाद में क्या हो गया, जैसे जैसे वो आई तो ये हो गया कि गुप्ता एम्पायर के पास उतनी पावर उतनी थी, लेकिन जो बाद के जो रूलर थे वो सही से आई थिंक उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और कुछ बाहर से लोग भी आकर इन्वेजन करने लगे थे। द फेयर्स हुना ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया रैपिडली अटैक द एम्पायर। तो जैसे हुना ट्राइब बार बार जो है वहाँ पे अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से इनका कंट्रोल जो है नॉर्थ इंडिया में कम हो गया। एट द सेम टाइम द राइज ऑफ पावरफुल रीजन रूल्ड लेड ऑफ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। और जो ये पावरफुल रीजन था इनमें अंदर के लोगों में जो अंदर किंगडम्स थे यानी कि जो बाकी किंगडम्स थे उनमें भी आपस में लड़ाई होने लगी। अब आपस में ही लड़ाई होगी तो कोई भी चीज़ नहीं रह सकती। However, was this truly the end? लेकिन क्या ये सच में एंड था और द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड दैट मार्क द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, या फिर एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में किसी नई चीज़ का। वी विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस बुक के।
मेन वाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, अब ये तो हो गया नॉर्थ में जो चल रहा था वो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ में क्या चल रहा था। सो लेट अस गो बैक टू द मैप इन 7.8, वो मैप आपको देखना है। वाइल द गुप्ता रूल्ड इन द नॉर्थ, द पल्लवा emerged as a powerful dynasty in the south, gradually consolidating their power in parts of present day Tamil Nadu, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो जो है जो पल्लवा था वो यहाँ पर जो है अपना पावरफुल, मतलब एक डायनेस्टी की तरह यहाँ पर वो टाइम से वो अपना रूल कर रहे थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना वगैरह इन जगह पर। देयर ओरिजिन आर नॉट क्लियरली नोन बट दे अपीयर टू हैव बीन अ ट्रिब्यूटरी पावर अंडर द सातवाहनास। अब उनका ओरिजिन नहीं पता कहाँ से हुआ, लेकिन वो एज अ ट्रिब्यूटरी काम कर रहे थे सातवाहना के साथ। ठीक है, सातवाहना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उस टाइम पे उनका रूल था, तो जब वो ख़त्म हुए तो उनके बाद ये एक ट्रिब्यूटरी थे, यानी कि उनके एम्पायर का एक पार्ट थे, तो ये अपीयर हुए। होम वी एनकाउंटर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर एंड टू हैव गेन पावर एज द सातवाहना डिक्लाइन। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में सातवाहना के बारे में पढ़ा, तो जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ, वो राज्य गिरा, वो उनके जो है राजा वगैरह नहीं रहे, तो ये लोग पावर में आए। द पल्लवास वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इन्हें भी जो आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत जो है मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं मतलब इंटरेस्ट था। मोस्ट ऑफ देम वर डिवोटीज ऑफ शिवाज एंड आर क्रिएटेड विद कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट टेम्पल एंड रॉक कट केव्स, सम ऑफ विच वी विल विजिट व्हेन वी एक्सप्लोर क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर। सो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए, रॉक केव्स को कट करके जो है टेम्पल वगैरह ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बनाई। ठीक है, मतलब रॉक को कट किया, केव्स बनाई, उसमें अपने डाइटीज़ वगैरह बनाई। इनके बारे में हम जब पढ़ेंगे, क्लासिकल इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। द कैपिटल ऑफ पल्लवास कांचीपुरम, जो कि आजकल तमिलनाडु है, ऑफर नोन एज द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, जिसे हम मानते हैं सिटी है 1000 टेम्पल्स की। ठीक है, डेवोटीज एज वन ऑफ द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग इन द साउथ, जिस डेवलप्ड है जो साउथ में जो है एक मेजर सेंटर हुआ था लर्निंग के लिए, जिसे माना गया था, उस तरह से उसे डेवलप किया गया। द एस्टेब्लिश ऑफ द घाटिका सेंटर ऑफ लर्निंग डेट एमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सातवाहना। तो एस्टेब्लिश घाटिका जो वहाँ पर बना था, जो सेंटर था किसका, सातवाहना के टाइम पर जो है सेंटर था सीखने के लिए, लर्निंग के लिए लोग वहाँ जाते थे। फॉरेस्टेड एन एनवायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। सो एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वहाँ पर चल रही थी। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, द कामरूपा किंगडम रूल्ड बाय द वर्मान डायनेस्टी एक्सटेंडेड ओवर द ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि आज असम में है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल एंड बांग्लादेश। एन एंशियंट नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम इज प्रयाग ज्योतिषा, mentioned in the Ramayana and Mahabharata. The later text mention बगदत्ता। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, कामरूपा रूल कर रहे थे वो वर्मान डायनेस्टी के अंडर में। इन्होंने अपना रूल जो है एक्सटेंड किया, अपने किंगडम को एक्सटेंड कर लिया कहाँ पर, असम तक। ठीक है, जो कि आज और कुछ जो है ब्रह्मपुत्र वैली जो है वहाँ तक इन्होंने अपना एक्सटेंड किया, जो कि आज बंगाल और बांग्लादेश वगैरह है वो पार्ट भी उसमें आता था। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का जो नाम है असम में, जो उस टाइम पे प्रयाग ज्योतिषा बोलते थे, रामायण और महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है। अब ये जो गुप्ता आर्ट से जो अलग अलग चीज़ें मिली हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, टेराकोटा मतलब मोस्टली मिट्टी से ही उस टाइम पे बनाई गई हैं सारी चीज़ें, तो वो सब यहाँ पर बताया गया है। ये अलग से और मूर्तियाँ, अजंता केव्स वगैरह यहाँ दिखा दी। तो अजंता केव में पूरा जो है एक ही रॉक को कट करके बनाया गया, ये पूरा अजंता केव्स का है, उसका अजंता और अलोरा केव्स का। और ये जो है उदयगिरी केव्स हैं गुप्ता एरा की। यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त पहले आए, ठीक है, उनके बाद चंद्रगुप्त, देन प्रभावती गुप्ता, कालिदास, आर्यभट्टा, वर्मा मीरा। तो इस तरह से इनका ये कार्यकाल चला था। अब ऊपर हमने उसके बारे में पढ़ा जिसे असम में प्रयाग ज्योतिषा बोला जाता है। एज फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ द कौरवास इन द ग्रेट वॉर एंड सम हिस्टोरिकल रूलर्स क्लेम्ड हिम अलोंग देयर एंसेस्टर। तो उन्होंने जो क्लेम किया कि वो हमारा ही है, बी डेड एज इट मे, द कामरूपा किंगडम वॉज अ प्रोमिनेंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर। तो ये जो कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर का एक सेंटर की तरह बन गया था, यानी कि वो जो है हेड वहाँ पर एज ए हेड ट्रीट होता था। टेम्पल एंड मोनेट्री फ्लोरिस्ड एज हब ऑफ लर्निंग, और टेम्पल एंड मोनेट्रीज में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती, तो उनका हब बना था। बोथ द पल्वास एंड कामरूपा आर मेंशन इन द
प्रशस्ति वी सो अर्लियर, तो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेना ने लिखा था उसमें जो है प्रशस्ति में इनके बारे में मेंशन किया गया है. ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन समुद्रगुप्ता डिफीटेड द पल्लवा रूलर बट डिड नॉट टेक ओवर द रीजन. इंस्टेड ही लेट द लोकल किंग इंक्लूडिंग द पल्लवास keep their throne as long as they accept his rule and pay tribute. सो जब समुद्रगुप्त थे उन्होंने इनको हरा दिया था, लेकिन इनका जगह नहीं ली थी, उन्होंने उनको ही राजा बना के रखा कि आप ही राजा रहिए यहाँ के, सिर्फ आप मेरा रूल जो है क्लेम कर लीजिए कि मैं राजा हूँ, आपका मेन राजा मैं हूँ, बाकी आपका रूल आपका ही चलेगा, सिर्फ मुझे आपसे टैक्स चाहिए, ट्रिब्यूट चाहिए. They helped maintain peaceful relation under similar condition in the northeast. Samudragupta defeated the ruler of Kamarupa but did not take direct control. By now, we have seen this pattern reoccur quite a few times. सो सब में ये वो यही कर रहे थे, जो कामरूपा वाले में भी हुआ उसमें भी उन्होंने वही किया कि तुम राजा रहोगे लेकिन मुझे जो ट्रिब्यूट देंगे, और ये चीज़ हम बहुत टाइम से देखते आ रहे कि वो इसी तरह से रूल करते थे. द गुप्ता पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस. अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी. इन्फ्लुएंस था स्ट्रेच फार बियॉन्ड द एम्पायर्स, स्ट्रेच हो रहा था बहुत ज़्यादा एम्पायर वगैरह जो भी है इनका, मतलब ज़्यादा एम्पायर जो है ज़्यादा बढ़ रहा था. आर्ट शेप ले रही थी, साइंस, लिटरेचर, गवर्नेंस ऑफ सेंचुरी, मतलब सब कुछ इसमें सही चल रहा था. एडवांस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी among other kinds laid the foundation for future scientific and technological growth. While beautiful temples and Sanskrit literature continue to inspire today, और उस टाइम की जो साइंटिफिक है या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ थी और जिस तरह के टेम्पल वहाँ बने थे, संस्कृत लिटरेचर था, वो आज की चीज़ें भी अगर हमें वो चीज़ें पता है या अगर पढ़ें तो आज भी इंस्पायर करती हैं. द गुप्ता क्रिएटेड अ स्टेबल एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी. उन्होंने एक जो स्टेबल और प्रोस्पेरस सोसाइटी वहाँ बनाई थी. सेटिंग अ मॉडल फॉर फ्यूचर रूलर्स. जो फ्यूचर रूलर होंगे उनके लिए एक मॉडल बनाया था कि आपको इस तरह से रूल करना है. देयर लेगेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडियाज कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ, मेकिंग दिस एरा एज वन ऑफ द हाई पॉइंट इन इंडियन सोसाइटी. उनका जो कल्चर था वो इस तरह का था कि आज भी उनकी लेगेसी इंडिया की कल्चर में, ट्रेडिशन में और वे ऑफ लाइफ में देखने को मिलती है. इसलिए वो जो है इंडियन सोसाइटी का एक बहुत, या इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. So before we move on, the Gupta king consolidated their power through military campaigns, land grants and matrimonial alliance to ensure stability in the empire. ताकि स्टेबल रहे, उन्हें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए थी, तो मित्रता की, कैंपेन की, सब चीज़ें उन्होंने की. The period saw remarkable contribution in the field of art, literature, science and mathematics. तो हर चीज़ में जो है उनका contribution था और हर चीज़ को आगे बढ़ाया. Other than the Guptas, dynasty like Vakatakas, Palwas and Varman ruled in their respective region, making this period full of cultural and intellectual vibrancy. अब ये जो बाकी के रूलर से गुप्ता के अलावा ये जो है अपने अपने रीजन में रूल करते थे और इस पीरियड को पूरा जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल जो है इस पीरियड को पूरा बना दिया था. लोगों का ध्यान सिर्फ उसी पे था. उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. Now question answer. Imagine you receive a letter from someone living in the Gupta Empire. Explain the letter. अब क्या होगा? So greeting from Patliputra. Life here is vibrant and full of excitement. Just yesterday, I witnessed a grand procession celebrating the Ashwamedha Yagya performed by our great king Samudragupta. The streets were filled with music, dancer and decorated elephants. People gathered in large number to pay respect to the king. Life in the city is peaceful and prosperous. Merchants from distant lands like China and Mediterranean visit our markets, trading goods like silk, spices and gems. Our city is clean and well organized, with charitable houses offering food and medicines to the poor. In the evening, I enjoy listening to poet and scholar in the royal court. The great Kalidasa often recite his beautiful verses here. Our temple and sculpture are truly divine, the art flourishing all around us. Many scholars study astronomy and medicines, including the work of Aryabhatta and Mihiraz. Truly it feel like I am living in a golden time. So उस टाइम पे उनकी जो कहानी है वो पूरी यहाँ पर बताई गई है कि किसी ने अगर लेटर लिखा तो क्या क्या लिखेंगे, तो उनके बारे में लिखेंगे, वो सब बताया है. Now, which गुप्ता रूलर नोन एज द विक्रमादित्य, तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय. Period of peace support the development of various aspects of socio-cultural life, literature and the development of science and technology. Examine the statement in the light of Gupta era. So, the Gupta period was the time of political stability and peace, which allowed people to focus on art, education, science and literature. Scholars like Aryabhatta and Vajramira made great advance in astronomy and mathematics.
Kalidasa created literary masterpieces in Sanskrit. Magnificent temple and sculpture were created, show artistic brilliance. This progress was possible because peaceful times allowed talent and creativity to flourish without fear of war and डिस्ट्रक्शन. तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पे जो कोई डर नहीं था, कोई लड़ाई का डर नहीं, कोई दूसरा डर नहीं, तो लोगों की क्रिएटिविटी और आर्ट जो है वो उसको बढ़ने का टाइम मिला. नाउ यू हैव टू रिक्रिएट अ सीन फ्रॉम द गुप्ता रूलर्स कोर्ट. सो कैरेक्टर क्या क्या होते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, मिनिस्टर, कालिदास, आर्यभट्टा और गार्ड वगैरह हो सकते हैं. सो मिनिस्टर्स क्या बोलेंगे? योर मैजेस्टी, द मर्चेंट फ्रॉम द वेस्ट हैव बीन अराइव्ड विद ट्रिब्यूट. Very good. Let them be welcomed. Kalidas, have you written something new for today? So yes, your majesty, I present a verse for Meghdutam, describe the beauty of the monsoon. King. Wonderful. And Aryabhatta, what discoveries have you made? Maharaj, I have calculated the earth rotation and a near exact length of the year is 365 days, 6 hours, 12 minutes and 30 seconds. Incredible. ट्रूली आवर इज़ एन एज ऑफ नॉलेज एंड विजडम. सो इस तरह से कोई भी आप एक जो है सीन क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पर इस तरह से आप कुछ और भी यहाँ पर लिख सकते हैं. नाउ यू हैव टू मैच दिस टू कॉलम्स. सो कांचीपुरम, नोन एज अ सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स. उज्जैनी, अ प्रोमिनियंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशियंट इंडिया. उदयगिरी, फेमस फॉर रॉक कट caves featuring intricate carving of Hindu deities. Ajanta, known for vibrant cave paintings that despite the Jataka's tales. And Patliputra, capital of Gupta. Who were the Pallavas and where did they rule? So Pallavas were a powerful dynasty that rose after the decline of the Satavahanas. Satavahanas के बाद ये जो है powerful आए थे, रूल में आए थे. They ruled over parts of present day Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. Their capital was Kachipuram and they were patrons of temple architectures and learning. Organize an exploration trip with your teacher to a nearby historical site, museum और heritage building. कुछ भी हो सकता है. तो उसके बाद आपको एक रिपोर्ट लिखनी है उसमें. सो रिपोर्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लोरेशन ट्रिप टू स्टेट म्यूजियम ऑन आवर स्कूल ट्रिप टू द स्टेट म्यूजियम. वहाँ गए. We explored artifacts from various historical period including the Gupta era. We saw ancient coin, terracotta sculpture and inscription on copper plates. The guide explained how these items revealed details about Gupta administration, economy and religious practices. We also viewed a beautiful replica of the iron pillar which demonstrated the Gupta advanced knowledge of metallurgy. Another highlight was the section of Ayurveda which displayed of ancient herbs and tools used by doctor of that time. This visit helped me connect what I have read in the class to real object and places, making history come alive. I realized how important museums are in preserving our past and how much we can learn by seeing history up close. सो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं या आप अपना कुछ अलग भी अगर होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपने वहाँ देखी, जैसे यहाँ पर लिखा कि आयरन पिलर का रेप्लिका था, वहाँ पे किस तरह की जो मेडिसिन्स थे या डॉक्टर जो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे वो सब देखकर जो हमने क्लास में पढ़ा था वो हमने देखा तो वो चीज़ें एकदम से याद हो गई या हमने उनको जो है एक दूसरे से रिलेट कर पाए तो वो ईजी हो गया था. सो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं. इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.